हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 10, जो कि हम करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल्स। यानी आप इसमें जो है इतिहास के चैप्टर में आप मुगल साम्राज्य के जो विस्तार के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करोगे। ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के लिए बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसके सिलेबस में मुगल एम्पायर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर है। तो चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे सीबीएसई से पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस के बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और सोचिएगा, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईओएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have a most important chapter discussion here, establishment of Mughal Empire. There is a most important chapter. The first point arrive here, advent of Babur. Babur is starting position of the 1526 to 30. The Babur assumed by the throne of Farhan as a small principality and the taxonoma in the 1494 at the age of the 12 after death of his father. The situation is that Central Asia was not established and the Babur had to face a lot of resistance from to the nobility itself. There is a most important here life is the 12th year only. And though there he was able to the capture of Samarkand, and but very soon he had a his retreat because of the distractions of some of his noble. He also lost a Fargana to be a Uzaveg. There is a most important there. Thus, the earlier year of Babur as a ruler in the Central Asia were tough. During the whole period of had is a plan of moving to about to Hindustan. And finally, from 1517 onward, they are made of discussions to move to about to India. A few of development in India at that time, they also helped him to the act on plan of invading India. There is a most important here. There is a most important fact here. Timurian. There Timurian is the then says is a Babur is a trace is a lineage from the Timur. There's a great is a conqueror of the Central Asia and to be a Genghis Khan. There are destination to the is a conquered from a mother as a side he was a descendant of the Mongol, and from a father as a side of the great commander Timur. Because of the lineage of the Timur is a Mughal are also is referred to the Timurs. There is a most important point here. The unstable political situation in India after the Sikandar Lodi as a death. The convention him on politicals is a discontentment and the disorder in the Lodi Empire. And the meanwhile, there was a confessed between some Afghan chief with the is Ibrahim's Lodi is permanent is among them and the Daulat Khan Lodi. They are governor of their large part of Punjab. The Rajput king of the Mewars, Rana is a Sangha was there also is asserting their authorities against the Ibrahim Lodi and was tried to increase the area of the influence in the northern India. Both of them sent the word to the Babur to invite to the India. There is a most important he invite the Babur in India. The invention from to the Ranga Shang and the Daulat Khan Lodi is a mind to have encouraged to the Babur is an ambition.
there is two main person for the invite to the Babur here ambition. There is Rana Sanga and the Daulat Khan Lodi. There is the most important point note down to the exam of the UPSC. Babur was successful in the capturing his Vira is a 1519 to 1520 is a Sialkot is a 1520 and Lahore is a 1524 in a Punjab. Finally, Ibrahim Lodi and Babur as a force meet a Panipat in 1526. There is a most important here battle, and the Babur as a soldier is where to less in number, but his organization of his army was a superior. There is a most important point here. A soldier were less in number, but organization of his army was a superior. The Ibrahim Lodi was defected in the Battle of Panipat. Success at the Battle of Panipat was a great achievement of Babur military tracks, and there Babur had an active army only is a 12,000 soldier, which the Ibrahim as an army had an estimate of strength of 1 lakh soldier. There is a 1 lakh soldier and the Babur only 12,000 soldier. When the first win there is the battle of field Babur as a tracks to very unique. Unique, and there is a most important here. The unique is effectively is applied to the Rumis, Ottoman, and the method of the welfare. He is circulate to the Ibrahim's as army from a two flank. In the center is a cavalry is a mounted attack with arrows and gun fire. By expected to the Ottoman is a gunners. There is traces and there are barricades is provided required and defense against the march of enemy. The Afghan is the army is Ibrahim Lodi is suffered to the heavier is the casualties, and the Ibrahim Lodis die in the battlefield. The Babur was the able to take a control of Delhi and Agra and go to the reach of the shore of the Lodis. And this money was distributed among to the Babur is a commander and soldier. There is a most important policy here. The victory at Panipat provided to Babur as a firm ground to the considerate is a conquest, but now he was faced with a few is problem. The most important problem here is the noble and this commander were eager to return to the Central Asia because they did not like the climate of India, and culturally also they felt very alienated. And their second point is the most important here. The Rajput were raised around to under to the leadership of Rana Sanga, the king of the Mewar, and they wanted to expel their Mughal force. There is the most important here. And the next year, the Mughals is a thought defeated of Panipat, where still of the formidable force in the eastern part of UP, Bihar, Bengal, and there is a regroupings to the reclaim. There is a lost power. There is a most important 3 point here. A victory of Panipat provided to the Babur is a frame is a ground to consider to consequent. To begin to the Babur is a convinced his the companions and their noble to stay back and help in their is a consolidating there is conquered and territories. After succeeding in this difficulty task, he sent his son Humayun to the face the eastern Afghan. There is a most important here, and Rana Sanga of Mewar is a succeed to muster support of a large number of Rajput chiefs. The permanent is among this where is the Johar, Sirohi, and the Dunagorup and the Ambars, Merata, etc. The Medani is a roy of the Chanehris is a Hassan Khan of the Mewat, and Muhammad Lodi is a younger son of Sikandar Lodi, also joined to Rana with there is a force. Possibly is a Rana Sanga is expected the Babur to be turned to the Kabul, and the is a Babur is a decision to be a step back. Must we have given a big jolt to the Rana Sanga's ambition. The Babur was also fully aware of the fact that it would be impossible for him to be considered there is a position in India. Unless they are saturated to Rana as a power, the force of Babur and Rana Sanga met at the Kanava and the place near Fatehpur Sikri. And the Rana Sanga was defeated in 1527 and once up again to the superiority of military tactics, and the Babur succeed.
With their fate of Rana, there is a biggest challenge in the northern India was a shattered. There is a most important here. This was a proof of their map, the most important map of Mughal times, a big tree. There is show on the most important, not provide to the English map, but here show the Hindi map, the most important here. This map of shows here there is a difference of Lodi state, and there is a most important of here a Mughal empire. Through there is a Mewar Rajput receive a great shock at the Khanavas is a Medani, and Rai in the Malwa was still a threatening to the challenge of the authorities to the Baba. In the spirit of the great is a war with there is a which their Rajput for their Changderis is a 1528. The Babar faced a little difficulty in overcoming in the Medin's Rai. And when there is referred to the resistance of across to Rajputan as was the completely shattered, but Babur has to that is a tackless to the Afghan. The Afghan had a surrounded of Delhi, but they were still powerful in the east, Bihar and part of Janapur. There is success against the Afghan and the Rajput at the Panipat and Khanava was very significant, but the resistance was still present. However, this is the victories were a step forward in the directions of the establishment of Mughal Empire. The Babur is a die in 1530. Still the ruler of Gujarat, Malwa and the Bengal enjoyed to the substantial military power and Savarnota is a suppressed. It was left of Humayun to face this original power. There is a most important Babur die is a 1530. There is a still of the ruler of Gujarat, Malwa and Bengal enjoy. There is a most important because Humayun is very low power original. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है महत्वपूर्ण चैप्टर जो है मुगल का जो है साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल एम्पायर का जो है भारत में विस्तार किस प्रकार हुआ। तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी तो जाता है बाबर की। कहते हैं बाबर ने ही भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था और उसके बाद देखा जाए तो 250-300 साल तक जो है मुगल के साम्राज्य भारत में स्थापित थे। तो ये बहुत बड़ी बात आती है, ठीक है। अगर देखें पहला पॉइंट के अंतर्गत बाबर का आगमन, बाबर जो था 1526 से लेकर 30 ईस्वी तक अपना जीवन यापन किया और बहुत इम्पोर्टेंट समय अवधि में इसने जो है कार्य भी किया। यानी देखा जाए 4 वर्ष का जो है इसका राज्य शासन था, लेकिन बहुत काफ़ी सुचारू था। कहते हैं बाबर शुरू से ही जो है बचपन कुछ उम्र में आगे बढ़ा, 12 साल का हुआ तभी से जो है संघर्ष करता रहा, क्योंकि उसकी जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसको बहुत तरीके से जो है उसको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा और इस बेस में जो है उसने बहुत से युद्ध लड़े और तब जाके आखिरी वक्त में जब 4 साल बचा उसके जीवन का तो उसने भारत पर रुख किया और भारत में जो है कई राज्यों को अपने रूल रेगुलेशन और अपनी चालाकी से जो है भारत को जो है जीत लिया और उस समय से मुगल एम्पायर का जो है वहाँ पर नींव डालने में सफल हो गया। तो इसी पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों में जो है बाबर ने किस चीज़ों का हेल्प किया, कैसे जो है अपने राज्यों को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप जो है इसी तरह तिरपान से साथ बने रहें। कहते हैं बाबर का आगमन यानी समय काल जो है 1526 से लेकर 30 में भारत की आगमन हुई थी बाबर का। सन कहते हैं 1494 में 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के उपरांत बाबर जो है ट्रांसकोयाना में एक छोटी सी जागीरी फरगाना की राजगद्दी पर बैठा। यानी देखा जाए जब वह 12 वर्ष का था तो उसी उपरांत उसकी पिता की मृत्यु हो गई थी और वो बहुत बड़ा साम्राज्य का मालिक नहीं था, सिर्फ ट्रांसकोयाना के एक छोटे से जागीर फरगाना की जो है राजगद्दी पर बैठा और मध्य एशिया में उस समय बहुत अस्थिरता थी। यहाँ पर अस्थिरता का मतलब होता है कि वहाँ पर हर समय मार काट, ठीक है, हर तरह से परेशानी ही परेशानी थी, यानी चारों तरफ से अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। बाबर को अपने ही अभिजात वर्ग से विरोध का सामना करना पड़ रहा था, यानी बाबर को दूसरे व्यक्तियों से सामना नहीं करना पड़ रहा था, अपने ही राज्य अपने ही लोगों से जो है सामना करना पड़ रहा था और अपने ही रिश्तेदारों से ये लड़ रहा था अपना दायित्व, अपना कर्तव्य के लिए, अपना जो है अधिकार के लिए। यद्यपि वह जो है समरकंद को जीतने के लिए समर्थ था, परंतु बहुत जल्द ही उसे
पीछे हटना पड़ा, क्योंकि उसके सामने ही कुलीनों ने साथ छोड़ दिया था, यानी जो उसके साथी थे वो सभी व्यक्तियों ने जो है उसका साथ छोड़ दिया था। कुलीनों का अर्थ होता है अमीर लोग। उसे जो है अक्सबेरियों के हाथों में फरगान को हराना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी उसके लिए विडंबना थी, क्योंकि उस समय उसका सिर्फ 12 वर्ष का ही उम्र था। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात फैक्ट के रूप में था कि तैमूरियन यानी तैमूर वंश, कहते बाबर मध्य एशिया को जीतने वाला महान विजेता तैमूर और बहुत ही विशिष्ट महान विजेता चंगेज खान के वंश से था। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है कि इसका जो था, कहते हैं बाबर जो था मध्य एशिया को जीतने वाला तैमूर और महान विजेता चंगेज खान के वंश से संबंधित था। अपनी माता के पक्ष से वह जो था मंगोल वंश से संबंधित था, यानी इसकी माँ जो थी मंगोल वंश से संबंध रखती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए कि उसकी माता जो थी यहाँ पर बाबर की, वो जो थी मंगोल वंश से संबंध रखती थी, और पिता की ओर से जो महान सेनानायक तैमूर से संबंध रखता था। तो आप समझ सकते हो कि कहते बाबर के खूनों में 2 राज्य वंश के खून दौड़ रहे थे और काफ़ी ये पावरफुल था। ठीक है, तैमूर वंश के संबंध होने के कारण मुगलों को जो है तैमूरियन भी कहा जाता है। यानी अगर देखिए जो है यहाँ पर मंगोल यानी तैमूरियन भी कहते हैं मुगलों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तैमूरियन के नाम से भी जो है मंगोल जाने जाते हैं। और क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इसका संबंध, माता का संबंध मंगोल वंश से था, और जो पिता का संबंध था वो था किससे? पता लग ही गया होगा आपको कि तैमूर से था, जो कि काफ़ी यहाँ इम्पोर्टेंट को दर्शाता है। मध्य एशिया में बाबर को शासन को आरंभिक काल में बहुत कठिनाई संघर्ष करना पड़ा, और इस पूरी अवधि के दौरान वह जो है हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की योजना बनाता रहा, क्योंकि उसका सबसे पहला मकसद था कि हिंदुस्तान ही जीतना था। लेकिन उस समय कंडीशन उसके पक्ष में नहीं था, और अंततः जब 1517 में बाबर ने भारत की ओर बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया, तो सबसे बड़ी बात थी कि उस समय जो था यहाँ पर लोधी वंश का अंत के कगार पे था, यानी जो शासक था वो बहुत ही कमज़ोर था और उसको हराना बहुत ही आसान था। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि उस समय बेशकली बाबर के पास सैनिकों की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके सैनिकों में एक जोश थी, एक अपने कुछ कर गुजरने की शक्ति थी, पावर थी। तो उसी दृढ़ निश्चय से उसने भारत की तरफ रुख किया, और भारत में उस दौरान कुछ उथल पुथल ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने की योजना पर जो है अमल करने में मदद कर दी। क्योंकि आपको पता है कि उस समय हर एक जो मुखिया हुआ करते थे, जो क्षेत्र के राजा हुआ करते थे, वो जो है अपना कब्जा दिखाना चाहते थे, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित करना चाहते थे, जो कि बहुत बड़ी विडंबना थी। और यही बात का जो है बाबर ने फ़ायदा उठाया, क्योंकि यहाँ पर जो था हिंदुस्तान में आपस में ही राजाएं लड़ रहे थे, आपस में जो है राजवाड़े लड़ रहे थे, जिसके वजह से जो है बाबर को बहुत ही जो है अच्छा कंडीशन मिल गया, और इसमें जो है हाथ धोना उसका बहुत आसान पड़ गया। क्योंकि कहते हैं ना, 2 बिल्लियां जब लड़ती है तो तीसरा जो है फ़ायदा उठा के चला जाता है। तो वही बात यहाँ पर था, आपस में यहाँ के राजाएं लड़ रहे थे, तो तीसरा व्यक्ति जो है फ़ायदा उठाना स्वाभाविक बात है, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं सिकंदर लोधी की मृत्यु के उपरांत उभरी भारत की राजनीति अस्थिरता परिस्थिति ने उसे सोचने का मौका दिया कि लोधी साम्राज्य में कितना राजनीतिक असंतोष और अव्यवस्था फैली हुई थी। यानी आपको पता है, जब सिकंदर लोधी की मृत्यु हुई तो भारत की राजधानी में उथल पुथल सी मच गई। भारत के जो है कहते हैं साम्राज्य में बहुत बड़ी संकट का सामना करना पड़ा इस समय, क्योंकि लोधी साम्राज्य में इतना काफ़ी कुशल व्यवस्था नहीं थी। इसी दौरान कुछ अफगानी सूबेदारों के साथ परस्पर संघर्ष भी हुआ, और सबसे बड़ा कारण था यह अफगानी सूबेदार, जिसके वजह से जो है लोधी वंश का जो आखिरी शासक था, उसके लिए जो है सूबेदारों का जो है सामना करना संभव नहीं था। यानी एक तरफ से कहें तो दौलत खान लोधी के लिए कहते हैं इतने विशाल जो है साम्राज्य को कंट्रोल करना संभव ही नहीं था। उसमें से एक प्रमुख जो सूबेदार था दौलत खान लोधी, जो पंजाब को एक विशाल भूभाग के सूबेदार था। कहते हैं मुबारक राजपूत राजा राणा संगा भी इब्राहिम लोधी के खिलाफ अधिकार
जताने के लिए जोर आजमाइश कर रहा था। यानी सबसे बड़ा जो था राणा संगा था। राणा संगा जो था इब्राहिम लोदी के खिलाफ अधिक से अधिक षड्यंत्र रच रहा था और अपनी जोर आजमाइश कर रहा था और शासन प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। उत्तर भारत में अपने प्रभाव के क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा था और इस दोनों ही बाबर को संदेश भेजकर उसे भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। यानी देखा जाए तो राणा संगा की जो है गलत नीति और उसको जो है अपने साम्राज्य को विस्तार और राज्य करने की जो लालसा थी, इन बातों से जो था बाबर के रास्ता को जो है साफ कर दिया। और देखा जाए तो राणा संगा ने ही बाबर को संदेश भेजा कि भारत की स्थिति सही नहीं है और वो आके यहाँ पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करे। तो यही बात यहाँ पर आता था कि राणा संगा के दौलत खान लोदी के आमंत्रण के शायद बाबर के उत्साह किया होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो व्यक्तियों के कारण जो है यहाँ बाबर की आगमन हुई, एक रंगा शागा और दौलत खान लोधी के कारण। इन्हीं दोनों के कारण जो है भारत में आमंत्रण किया गया बाबर का और बाबर जो है बहुत उत्साह के साथ भारत पे आक्रमण करके कई हिस्सों को जीत लिया। बाबर फिर आए यानी 1519 से लेके 1520 ईस्वी। उसके पश्चात सिलाकोट और जो है पंजाब में लाहौर जो कि 1524 को जीतने में कामयाब हुआ। यानी बाबर के देखे तो यहाँ पर अभियानों की जो लड़ी लगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और भारत के लिए बहुत ही जो है सही नहीं था। तो इसमें जो है बाबर ने सबसे पहले वीरा के ऊपर जो है 1519 से लेकर 20 में अपना जो है विजय अभियान को कायम रखा। उसके बाद सिलाकोट को जो 1520 ईस्वी में उसने विजय हासिल की और पंजाब में लाहौर को जो है 1524 को जीतने में कामयाब हुआ। अंत में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं का सामना जो है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। आपको पता ही होगा कि पानीपत के जो युद्ध था बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें पूरा इतिहास को ही बदल के रख दिया। और ये कई मायने में एग्जाम में आता है कि पानीपत की युद्ध कब हुई, किसके बीच में हुई, ठीक है, और इसका क्या परिणाम निकला। तो ये सारे प्रश्न का उत्तर जो है आपको इसी में मिलेगा, समझने की कोशिश कीजिए, सब मिलेगा। तो आपको पता लग ही गया है कि पानीपत के युद्ध जो था इब्राहिम लोदी और बाबर में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। और यह स्थान कहाँ गवाह बना? पानीपत का। बाबर की सेना में कम संख्या में सैनिकों के बावजूद उनकी सैनिक व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ थी। देखा जाए तो बाबर की संख्या बहुत ही कम थी, यानी इतने सेना से जितना संभव नहीं था, लेकिन कहते हैं एक व्यक्ति अगर उसकी इच्छा हो तो कहते हैं जहां को जीत लेता है। ऐसे ही सैनिक जो थे उस बाबर में सम्मिलित थे। पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत उसके सैनिक पद्धतियों की एक बड़ी जीत थी। बाबर की सेना में सिर्फ 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम के पास औसतन 1 लाख सैनिक बल थे। अब देखिए 12,000 सैनिक और 1 लाख सैनिक में कितना अंतर है, लेकिन कहते हैं जिसके पास कार्य कुशलता है वो अच्छे से अच्छे जो है जीत हासिल कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास अच्छे पढ़ने का टेक्निक है, अच्छे रूल रेगुलेशन है, तो आपके लिए पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। जैसे 12,000 ने 1 लाख को हरा सकता है, तो आप अपने कुछ बचे हुए समय जो कि एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, उन्हीं टाइमों को बचा के अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया, अच्छे से पढ़ाई किया, तो संभवतः है कि आप जो इतने महीनों में नहीं कर सके वो कुछ घंटों और कुछ दिनों में ही करके दिखा दोगे और कामयाबी के जो है डगर पे चल दोगे। तो यही बात यहाँ पर जो है बाबर के सैनिकों ने भी किया। कहते हैं 12,000 सैनिक से उसने जो है भारत पे विजय हासिल किया, जो बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है यहाँ पर जो है सैनिक श्रेष्ठता की, सैनिक संगठन की। तो कहते हैं अगर आपके पास कोई सैनिक संगठन है, समझदारी है, तो उसको आप बहुत आसानी से संचालित कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 1 लाख सैनिक है और सैनिक को जो है कंट्रोल करने वाले जो है बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग बंदे कंट्रोल कर रहे हैं, तो शायद 1 लाख सैनिकों को संभालना बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा। यही बात यहाँ पर जो हुआ लोधी के साथ हुआ, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 12,000 सैनिकों को जो बाबर ने बहुत आसानी से संगठित किया और इसको जो है हर एक नीतियों का जो है अनुसरण किया। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ हम देखें इब्राहिम लोधी को, जो 1 लाख सैनिक बेशक लेके आ गया, संख्याओं में खड़ा कर दिया, लेकिन इसके जो है प्रणाली कंट्रोल करने की प्रणाली बिल्कुल ही बेकार थी, जिसके वजह से 12,000 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को हरा दिया। युद्ध के दौरान में आमने सामने की लड़ाई में बाबर की जो युद्ध नीति बहुत ही अद्वितीय थी। कारण क्या था? क्योंकि बाबर ने अपने घरों में बहुत संघर्ष कर चुका था और कहते हैं बाबर का जीवन
जो है अधिकतम जंगलों में ही बिताया, क्योंकि उनके अपनों ने धोखा दिया, बार बार वो गद्दी प्राप्त करता था और बार बार अपनों ने जो है उसको गद्दी से हटा दिया करता था। तो बाबर का जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ और वहाँ पर हर तरह के जो है कार्य कुशलता के विषय में जाना सीखा और समय ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया। जैसे आपको भी समय ज़रूर सिखाएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, रूल रेगुलेशन क्या होता है। जब तक आप स्वयं ही कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप स्वयं ही इच्छा को नहीं जगाओगे, आपको कोई जो है ज़बरदस्ती पढ़ा नहीं सकता। तो वही बात यहाँ पर बाबर के साथ हुआ कि बेशकली उसके पास जो है लोगों की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा शक्ति ने जो है भारत का विजेता बना दिया। तो यही बात यहाँ पर आती है कि उसने युद्ध लड़ने के लिए रूमी ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, यानी एक तरह के रूमी ऑटोमन जो युद्ध प्रणाली है, एक प्रणाली की तरह देखा जाता है। उसने इब्राहिम की सेना को दो जो है पंक्तियों से घेर लिया, बीच में से उसकी घुड़सवारों ने जो है तीरों और अनुभवी ऑटोमन तोपचीसों से तोपों के आक्रमण किया। देखा जाए तो इस युद्ध में तोपों का जो है बहुत काफ़ी गहरा संबंध था कि तोपों के कारण जो है जीत भी हासिल हुई। खाइयों और राह में जो है खड़ी की गई बाधाओं ने सेना को जो है दुश्मनों के विरुद्ध आगे बढ़ने में बचाव का काम भी किया। इब्राहिम लोदी की अफ़गानी सेना को बहुत भारी संख्या में सैनिक मारे गए, ठीक है, और इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गई। यानी इब्राहिम लोदी की मृत्यु के कारण जो है सैनिक जो है अफरा तफरी मच गई और इस प्रकार दिल्ली और आगरा पर बाबर का नियंत्रण हो गया और लोधी की अपार संपदा पर भी इसका कब्जा हो गया और इस धन को बाबर के सेनापतियों और सैनिकों में बांट दिया गया। तो ये काफ़ी यहाँ पर बाबर ने चतुराई का जो है परिचय दिया कि विजय जितने भी धन दौलत थे सभी सैनिकों में बांट दिया, क्योंकि उसका ये महत्व था कि सिर्फ 12,000 सैनिकों की कुशलता और उनकी जो है इच्छा शक्ति के कारण ही वो भारत पे विजय हासिल कर पाया। तो वो ये समझता था कि इस धन पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस धन पे उन सभी सैनिकों का अधिकार है जो मेरे सामने लड़े और अपना जीवन को जो है आग के दरिया में झोंक दिया। तो इसलिए जो है यहाँ पर बाबर ने बहुत बड़ा फैसला किया कि इन धनों को जो है सेनापतियों और सैनिकों में बांट दिया जाए। पानीपत की विजय ने बाबर को अपनी विजयों को जो है संगठित करने के लिए एक दृढ़ आधार प्रदान कर दिया, क्योंकि पानीपत की विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय था और इब्राहिम लोधी के साम्राज्य पर अधिकार करना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। परंतु इस समय उसके इन समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ समस्याएं थी जो कि यहाँ पर बाबर को सामना करना पड़ा। वो यहाँ इस प्रकार थी, कहते उसके कुलीन वर्ग के लोग और सेनापति मध्य एशिया में वापस लौटने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें भारत का वातावरण पसंद नहीं था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी वे खुद को जो है अजनबी महसूस करते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या बाबर के समक्ष था कि सेनापति हो, ठीक है, सेनापति कुलीन वर्ग सब के सब जो है आपस लौट जाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि उनको यहाँ के वातावरण पसंद नहीं था और यहाँ की संस्कृति में अपने आप को अजनबी महसूस करते थे। यहाँ की संस्कृति अलग था, इसलिए वो रहना यहाँ पसंद नहीं करते थे, जो कि बाबर की सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी बात थी कि राजपूत मेवाड़ा के राजा राणा संगा के नेतृत्व के अधीन अपनी शक्ति को एकजुट करने में लगे हुए थे और मुगल सेनाओं को खदेड़ना चाहते थे। देखिए, राजपूत मेवाड़ के राजा रंगा संघा के नेतृत्व के अधीन अपनी शक्ति को एकजुट करने में लगे हुए थे। यानी रंगा संघा जो था उसको ये विश्वास था कि अगर मैं बाबर को आमंत्रण देता हूँ तो वो मुझे राज्य जीत के मुझे जो होगा इब्राहिम लोदी के शासक बना देगा, उसके जो है सिंहासन बैठा देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर रंगा संघा को सबसे बड़ा धोखा मिला। बाबर ने स्वयं यहाँ पर जो है अपना साम्राज्य विस्तार का फैसला कर लिया, जिसके वजह से जो है राणा संगा आप सैनिकों को जो है इकट्ठा करने लग गया और जो है बाबर से युद्ध करने की में लग गया, जिसकी वजह से बाबर को बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसने अपने कहते हैं जिसने कुआं खोदा वही कुएं में गिरा, जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर शिक्षाप्रद है। कहते हैं आगे देखा जाए तो अगर तीसरी पॉइंट पे नज़र करें तो यही बात दर्शाता है कि अफगानियों को यद्यपि पानीपत में हार का मुंह देखना पड़ा, परंतु अभी भी उसके सेना उत्तर प्रदेश जो है पूर्वी भाग बिहार बंगाल में शक्ति बनाई हुई थी। वो अपनी खोई शक्ति को पुनः संगठित करने में लगे हुए थे, जो कि बाबर का बहुत बड़ी जो है समस्याओं में से एक माना जा सकता है।
अरब में बाबर ने अपने साथियों और कुलीनों को वहीं रुक रहने के लिए और जीते गए प्रदेश को संगठित करने में उसकी मदद करने के लिए राजी कर लिया। देखिए ये उसकी अपनी जो है कुटिलता थी, जो कि साथियों को, कुलीन वर्गों को जो है वहाँ पर रहने के लिए उसने मजबूर कर दिया और सभी साम्राज्य को जो है सुगठित करने में उसने उससे मदद मांगी। इस कठिन काम में सफलता हासिल करने के बाद उसने अपने पुत्र हुमायूं को पूर्व में बसे अफगानियों को सामना करने के लिए भेजा था और मेवाड़ के राणा रसंगा बहुत बड़ी संख्या में राजपूत राजाओं को समर्थन एकत्र करने में सफल भी हो गए थे और इसमें प्रमुख थे जो जालौर, सिरोही, डूंगरपुर, अंबर, मेतार इत्यादि। यानी राजा राणा संगा ने जो है मुगल को हराने के लिए उसने सभी राजपूतों को इकट्ठा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि राणा संगा जो था बाबर को आमंत्रण किया था, अब बाबर से उसको लड़ना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या जो थी यहाँ पर। चंदेरी और मेदिनी राय मेवात के हसन खान और सिकंदर लोधी के छोटे बेटे महमूद लोधी भी अपनी सेनाएं सहित राणा संगा के साथ आ मिला। शायद राणा संगा को आशा थी कि बाबर काबुल वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर को यही रुक रहने में राणा संगा की महत्वाकांक्षा का गहरा झटका लगा। ठीक है, और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। बाबर को भी पूरी तरह से यह समझ आ गया था कि जब तक राणा संगा की शक्ति को छीन नहीं किया जाएगा तब तक भारत में अपनी स्थिति को संगठित करना उसके लिए संभव नहीं है, यानी संभव है ही नहीं, असंभव कार्य है। क्योंकि ये बात साफ शब्दों में था, क्योंकि कहते हैं अगर देखा जाए स्टार्टिंग में तो इसी ने जो है बाबर को आमंत्रण किया और उसका विश्वास था कि ये क्या करेगा, उसको जो है राज्य को जीत के जो है राणा संगा के हाथों सौंप देगा। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाबर ने अपने ही देश में जो है अनजानों की तरह जीवन व्यतीत करता था, कभी जंगलों में कभी वहाँ, और उसने जो था यहाँ पर जो है उसको एक पृष्ठभूमि मिल गई, एक राज्य मिल गया, एक साम्राज्य मिल गया। उसको छोड़ के जाना बाबर के लिए सही नहीं था, इसलिए बाबर ने यहाँ पर ही अपना जो है शासन करने का निश्चय किया। और ये बात जो है राणा संगा को रास नहीं आई और ये बार बार राजपूतों को इकट्ठा करके बाबर पर आक्रमण किया करता था। और ये बात बाबर को भी समझ में आ गया कि जब तक जो है राणा संगा की शक्ति को छीन नहीं किया जाएगा तब तक जो है भारत पे उसके लिए संगठित करना संभव कार्य नहीं था। बाबर और राणा संगा की सेनाओं का मुकाबला फतेहपुर सिकरी के पास एक स्थान खनावा में हुआ और सन 1527 में राणा संगा की हार हुई और एक बार फिर बाबर की बेहतरीन सैनिक युक्तियों के कारण उसे सफलता मिली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सफलताओं में से माना जा सकता था। क्योंकि इब्राहिम लोधी की बात दूर थी हराना, लेकिन राणा संगा को हराना उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। राणा की हार के साथ ही उत्तर भारत में उसे सबसे बड़ी चुनौती देने वाली ताकत बिखर गई, क्योंकि राणा संगा बार बार राजपूतों को इकट्ठा करके बाबर पर हमला करता था और इसकी शक्ति कमजोर नहीं थी। यद्यपि मेवाड़ के राजपूतों को जो है खनावा में गहरा आघात लगा, परंतु मेवाड़ में मेदिनी राय अभी भी बाबर को चुनौती दे रहा था। जिस बहादुरी से राजपूतों ने चंदेरी में जो है 1528 युद्ध किया, बाबर को मेदिनी राय पर विजय प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इसकी हार के बाद राजपूतों की ओर से विरोध का स्वर बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। पर अभी भी बाबर को अफगानियों को हराना था। अफगानियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, परंतु पूर्व बिहार और जौनपुर के कुछ भागों में वे अभी भी काफ़ी शक्तिशाली थे। अफगानों और राजपूतों पर पानीपत के खनावा में जीता बहुत ही महत्वपूर्ण था, परंतु विरोध के स्वर अभी भी मौजूद थे। परंतु अब हम यह कह सकते हैं कि यह जीत मुगल साम्राज्य की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि देखा जाए तो यहीं से जो है अफगानों के हारने के पश्चात ही जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार होना शुरू हो गया। लेकिन सन 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब ही जो है गुजरात, मलबा और बंगाल के शासकों के पास काफ़ी शक्तिशाली सैनिक बल था और उसका दमन नहीं हो सकता था। इस प्रदेशी शक्तियों का मुकाबला करने का काम हुमायूं के सामने अभी बाकी था। इस मानचित्र को देखने से आपको यह बात का आभास हो जाएगा कि बाबर का काबुल का राज्य किस प्रकार से फैला हुआ था और बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि मुगलों के आरंभिक विजय स्थल कैसे दिख रहे हैं। देखिए हर क्षेत्र में जो है वो अपना अधिकार कर रखा है, जो कि में कोई दो राय नहीं है। इब्राहिम लोधी आपको दिख रहा है, दिल्ली सल्तनत दिख रहा है, सतलुज,
झेलम, चिनाब, पंजाब, कश्मीर सब जगह जो था बाबर काबुल का राज्य अपना स्थापित कर लिया था, ब्रह्मपुत्र सभी क्षेत्रों में। तो कहते हैं मैप भी बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुगल की साम्राज्य कैसी विस्तृत थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर ने अपनी कुशलता से का जो है परिचय दिया, और सबसे बड़ी बात थी उसका सैनिक संगठन। कहते हैं दोस्तों, जब तक आप किसी चीज़ की संगठन नहीं करोगे, जब तक अपने आप पे रूल रेगुलेशन लागू नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपका पढ़ाई भी होता है तो इसी बात पे निर्धारित होती है कि अगर आपको पढ़ने का टेक्निक कैसा है, आप कैसे जो है पढ़ना को पसंद करते हो। ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं एमसीक्यू करके अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन आंसर लर्न करके सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं समझदार होते हैं और वो क्या करते हैं, चैप्टरों का अध्ययन करते हैं। कहते हैं चैप्टरों के अध्ययन करने से एक फ़ायदा ये होती है कि हर एक छोटी से छोटी बातें आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन कीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर ही आपको आएगा समझ। अगर चैप्टर कीजिएगा तो हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक लिखने योग्य बन जाइएगा। तो इसलिए त्रिपाण सेंटर यही कोशिश करता है कि आपको चैप्टर के रिगार्डिंग समझाया जाए। लेकिन कहते हैं समय के साथ थोड़ा सा बदलने की कोशिश करना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। किसी को चैप्टर जो है बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाता है, लेकिन किसी को क्वेश्चन ही समझ में आता है। तो इसलिए त्रिपाण सेंटर ये भी कोशिश कर रहा है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चन दिया जाए जो कि आपके लिए एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण हो, और इसमें जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर अग्रसर भी है। तो इस मैप में और भी बातें यहाँ पर दर्शाई गई है। ये तो हमारी उत्तरी क्षेत्र के पार्ट को हमने देखा जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके जो है हमें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनुमति सीमाएं जो है यहाँ दर्शाई गई है। लोधी राज्य की जो स्थापना जो है वाइट शेप में दिखाई गई है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखा जाए तो लोधी राज्य काफ़ी जगह पर फैली हुई थी, और इसका जो है बहुत आसानी से बाबर ने दमन करके अपने राज्य का हिस्सा बना लिया, अपना राज्य बना लिया। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। लेकिन देखा जाए तो 1530 में जब जो है बाबर की मृत्यु हुई तो सबसे बड़ी जो थी जो है सामना करना पड़ गया। कहते हैं इस समय जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी हुमायूं के लिए, क्योंकि हुमायूं के फादर की मृत्यु के उपरांत राज्य को संभालना हुमायूं के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके पिता ने हर संभव जो है अपना राज्य को स्थापित करने में अपनी कुशलता का सामना किया। अब हुमायूं का था परिचय देना कि इस राज्य को कैसे जो है स्थापित किया जाए और कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए। तो इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे पाठ में करेंगे, आगे हम टॉपिक में करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छा लगता है तो दूसरे बच्चों तक वीडियो पहुंचाने में आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी जो है आपको दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा।